بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرنا رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دی ہوئی ناشکری کی، اور پھر اللہ نے مجھے ایک ایسی آزمائش سے گزارا جس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ہو گئی۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاتا چلوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا خود نہیں سیکھا۔ اللہ نے میرے لیے اپنی ناری مخلوق کو میری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ شاید آپ کو میری کہانی تھوڑی غیر حقیقی لگے، لیکن کہانی میں آگے چل کر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو یقیناً آپ بھی اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے ٹھیک 20 سال قبل جب میں روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا تو میں نے اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجا رکھے تھے۔ سوچا تھا کہ سعودی عربیہ سے اچھا خاصا مال کما کر لوٹوں گا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مزدوری کر کے زیادہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ بہرحال اپنا بھرم رکھنے کے لیے میں نے چند سال محنت کی، جو پیسے بچتے وہ گھر بھیج دیتا۔ جب میں واپس لوٹا تو میرے پاس بجلی پر چلنے والی گھسی پھٹی پرانی اور بوسیدہ سلائی مشین اور اس کی چند افزار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری جیب بالکل خالی تھی، گو کہ جو مشین میں اپنے ساتھ لایا تھا یہ پورے گاؤں میں میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ مگر پھر بھی غربت نے میرے گھر کی جیسے راہ دیکھ لی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے 6 بچے تھے جن کا بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں نے پردیس میں گزارے وقت کے دوران جو بھی پیسہ کمایا تھا میرے گھر اور خاندان کے سبھی لوگوں نے اسے بینک سمجھ کر استعمال کیا۔ خاندان کے تقریباً سبھی لوگوں نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ اب جب میری جیب خالی ہو گئی، میرے پاس اور کچھ نہ بچا تو ناکامیوں کے سارے محاورے مجھ پر فٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی مجھے تانے دینے لگا۔ میں کافی پریشان رہنے لگا تھا، مگر پھر بھی ہمت کا دامن میں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ محنت پر یقین تھا سو میں نے اپنی محنت جاری رکھی۔ ویسے تو میں کپڑے سلائی کرنے کا اچھا کاریگر تھا، لیکن پردیس میں عربی ثقافت کو ملبوسات اور دیگر بین الاقوامی معیار کی سلائی کے بعد میرے ہنر میں مزید نکھار آ چکا تھا۔ میں کپڑے بہت عمدہ سلائی کرتا تھا، جس کے لیے مجھے خوب محنت کرنا پڑتی تھی۔ پردیس میں رہتے ہوئے میرے سب بہن بھائیوں نے اپنے الگ الگ گھر تعمیر کر لیے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی ایک غیر معمولی سا آشیانہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں جس گھر میں پہلے رہتا تھا، جو ہمارے آبائی قبرستان کے پاس واقع تھا، وہ مجھے بے حد پسند تھا کہ یہیں پر تو میرا جنم ہوا تھا۔ ہمارا پرانا گھر انتہائی خوبصورت تھا، اگرچہ وہ کافی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے کمرے کھلے تھے اور چھتیں بھی قدرے اونچی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ اونچی چھتیں تعمیر کرنا فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا کھیت بھی موجود تھا۔ غرض یہ کہ ہمارا گھر ایسا تھا جسے دیکھ کر پرانی کتابوں میں شائع ہونے والی تصویریں یاد آ جاتی تھیں۔ ہمارے گھر کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس کے سامنے موجود کھیت میں بڑے بڑے دیو کمت اخروٹ کے درخت بھی موجود تھے۔ یہ درخت اس قدر پرانے اور گھنے تھے کہ ان کی چھاؤں نے پورے گھر اور کھیتوں کو اپنے زیر سایہ کر رکھا تھا۔ ان درختوں کی جڑیں بڑی ہی پکی اور مضبوط تھیں۔ درخت اس قدر گھنے ہو چکے تھے کہ ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر دن بڑا خوبصورت گزرتا تھا۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں ہمیں کسی جنت سے کم نہیں لگتی تھی۔ اگرچہ اب گاؤں میں نئی نئی بجلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ جن لوگوں کے حالات اچھے تھے انہوں نے بجلی والے پنکھے بھی اپنے گھروں میں لگا رکھے تھے، مگر میرے لیے اخروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کام کرنا بڑا ہی فرحت بخش احساس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی مشین کے لیے وہاں پر ایک پھٹا اور کرسی وغیرہ لگائی اور وہیں پر بیٹھ کر سلائی کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھتے، کچھ تو میرا مذاق اڑاتے اور کچھ مجھے سلائی کا کام دے جاتے تھے۔ یوں مجھے رفتہ رفتہ سلائی کے لیے کپڑے ملنا شروع ہو گئے۔ لوگ البتہ اکثر جب یہاں سے جاتے تو مجھے جنات کی کہانیاں سناتے اور کہتے کہ اس قدر گھنے درخت کے نیچے بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو۔
मेरी आदत थी कि मैं बातें सभी की सुनता था, लेकिन फ़ैसला अपने दिमाग से किया करता था। खैर, इस तरह के बारे में काफ़ी बातें मशहूर थीं। तभी लोग अगर यहाँ बैठते भी तो शाम होते ही मगरिब से पहले पहले वापस चले जाते थे, जबकि मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद ही वापस लौटता। मेरी आसानी तो ये थी कि इन्हीं दरख्तों के पास पत्थरों पर मौजूद एक दायरा बना हुआ था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये किसी शहीद की कब्र है। घर के बुज़ुर्गों ने इस दरख्त के नीचे मौजूद जगह का मखसूस अहाता शुमार कर रखा था, जिसमें किसी जानवर या इंसान को गंदगी फैलाने की इजाज़त नहीं थी। जबकि इसी अहाते में पत्थरों की बनाई गई 2 जायनमाज़ें भी थीं, जिन पर अक्सर राह चलते नमाजी भी नमाज अदा कर लेते। मुझे उस जगह से घर पहुंचने तक 10 मिनट पैदल मुसाफत में सर्फ होते थे। मैं अपने औकात का पक्का था। आना हो या जाना, दिन में 3-3 जोड़े कपड़े सिलाई करता और अपने घर की राह लेता। जब कभी मुझे नमाज पढ़ना होती तो इन्हीं पत्थरों से बनी जायनमाज़ों पर वज़ू करके खड़ा हो जाता था। घर के बुज़ुर्गों का कहना था कि तुम हमारी नहीं मानते तो किसी दिन सख्त नुकसान उठाओगे। मुझे उनकी बातें मजाक लगती थीं। भाई, मेरा काम तो ठीक ठाक चल रहा था। दरख्त के नीचे बैठने की वजह से हर कोई मुझे देखता रहता था। और फिर अभी पास ही एक मार्केट बनी थी। यहाँ पर भी नए नए लोग आना जाना शुरू हो गए थे। वहाँ से भी अक्सर लोग आते जाते मुझे देखते तो मेरे काम की तारीफ़ करते थे। सो मैं किसी की बात खातिर में ना लाता। मुझे रिज़्क आ रहा था, मैं रिज़्क को क्यों लात मारता। सो मैंने अपना काम जारी रखा। ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आखिरी अशरा चल रहा था। इन दिनों ईद की आमद थी। कपड़ों की सिलाई का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। गांव में मैं वाहिद दर्जी था जिसके पास बिजली वाली मशीन थी, तभी मेरे काम जल्दी हो जाते थे। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। मुझे मगरिब के बाद रात देर तक काम करना पड़ता। मैं उस जगह अकेला रह जाता, जबकि बाकी सभी लोग मगरिब के बाद अपने अपने घरों को चले जाते। मैं उस जगह अकेला ही रात को 12 बजे तक काम में मसरूफ़ रहता था। कभी कभार तो इतनी देर हो जाती कि रात के 2 भी बज जाया करते। मैं लालटेन की रोशनी में काम करता रहता। मुझे अम्मा अक्सर मना भी करती, लेकिन मैं बस अपने कामों में लगा रहता। ये 29 रमज़ानुल मुबारक की रात थी। अगले दिन ईद का दिन भी मुतवक्के था। मैं अपने कामकाज की वजह से दिन और रात का फ़र्क भी भूल गया था। फिर मेरे पास फुर्सत का इतना लम्हा भी नहीं बचा था कि मैं रात को भी खाना अच्छे से खा लूँ। दिन के वक्त तो रोज़ा होता था। 12 बजे के बाद काम करना मुश्किल हो जाता। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मैं सो जाता। काफ़ी देर बाद उठता, असर की नमाज़ पढ़ता और फिर ऊँघता रहता। मगरिब के बाद मैं रोज़ा इफ्तार करके अपने काम में मगन हो जाता था। इन दिनों चांदनी रातें थीं। रात के 2 बज रहे थे। मेरे आसपास ईद के कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। मेरी भरपूर ख्वाहिश थी कि कल ईद हो या ना हो, रोज़ा हो, ताकि मैं सारे लोगों के कपड़े सिलाई करके उन्हें वापस दे दूँ। लेकिन मेरे कब्ज़े में कुछ भी नहीं था। बहरहाल आज आखिरी दिन था। आज मुझे रात देर तक जागना था। मैंने सोच लिया कि आज चाय का मग अपने पास रखूँगा। धीरे धीरे चाय भी पी रहा था, कपड़े भी सिलाई कर रहा था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी लालटेन और सिलाई मशीन की खड़खड़ के अलावा आसपास और कोई आवाज़ नहीं थी। सन्नाटे और तारीकी के इस माहौल में आज कपड़े सिलाई करते हुए न जाने क्यों मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। अंधेरा काफ़ी गहरा था। अगरचे मैं अपने घर के सहन के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे की हौलनाकी मुझे डरा रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि आज की रात पहले जैसी नहीं है। ज़रूर आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मेरे टेबल के ऊपर जहाँ मैंने मशीन रखी थी, लालटेन की पीली मध्यम रोशनी पड़ रही थी। मैंने कपड़े सिलाई करते हुए मशीन से निगाह हटाई तो देखा टेबल पर सफ़ेद रंग की रोशनी पड़ रही है। ये रोशनी कहाँ से आ रही थी मैं जान नहीं पाया। अभी इसी पर गौर कर रहा था कि अखरोट के दरख्त की झाड़ियों में अजीब सी खड़खड़ की आवाज़ पैदा हुई। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ और भी 2-3 लोग मौजूद हैं। इस सन्नाटे में मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मारे खौफ के मुझे पसीना आ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके ऊपर मुड़कर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं।
मेरे सामने दो खूबसूरत नौजवान अपने हाथों में सुई और धागा लिए खड़े थे। इस गहरे अंधेरे में भी उनके चेहरे चांद की तरह रोशन और खूबसूरत थे। दोनों नौजवानों के हाथों की उंगलियां पतली और लंबी थीं। इनकी आंखें खूबसूरत, गहरी और नीली चमकदार थीं। अंधेरे में भी मुझे इनकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। मेरे आसपास रोशनी का थोड़ा सा ही इंतज़ाम मौजूद था, लेकिन इनके कपड़ों और इनके चेहरों से फूटने वाली रोशनी ने आसपास के माहौल को काफ़ी ज़्यादा पुरनूर बना दिया। वो दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया। इन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। कहने लगे, हमारे कपड़े सिलाई हो गए। मैं उन्हें देखकर डर या फिर एहतराम की वजह से खड़ा हो गया। मेरे पास ईद की सिलाई के दिए हुए तमाम जोड़ों की तफसील एक रजिस्टर पर मौजूद थी। मैं अक्सर लोगों का चेहरा शनास था, तकरीबन सभी लोगों को जानता था। रजिस्टर की ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी एहतियातन लिख लेता था। इन दोनों नौजवानों के लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मेरे लिए दोनों के हुलिये और चेहरे अजनबी थे। पहले तो मैं समझा कि शायद ये पास वाले बाज़ार से आए होंगे, मुझसे कपड़े लेने होंगे। मैंने उनसे नाम पूछे तो नौजवान ने मुझे अपना नाम यामीन बताया। मैंने रजिस्टर पर देखा, कहीं पर भी यामीन नाम का कोई भी गाहक दर्ज नहीं था। मैंने कहा, मैं आपको नहीं जानता, आपने किसी और को कपड़े दिए होंगे। बज़ाहिर तो मैं बड़ी हिम्मत दिखा रहा था, मगर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों नमदार हुए थे, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तभी एक लड़के ने आगे बढ़कर मेरे कपड़ों के बंडल में से कुछ कपड़े ढूंढना शुरू कर दिए। मैंने सारे कपड़े तह करके एक पेटी में रखे हुए थे। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, मगर मैं चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाया। वो कपड़े उठाकर बाहर फेंक रहा था, जैसे कोई ख़ास चीज़ ढूंढ रहा हो। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। इर्द गिर्द का माहौल तकरीबन पहले जैसा हो गया था। मुझ में थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने उसे मुखातिब किया। मैंने कहा, ना, मैंने आपके कपड़े नहीं सिलाई किए, ना ही आप मेरे पास आए थे। मेरा ये कहना था कि नौजवान सीधा हो गया, मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं मजबूरन उसके पीछे चलने लगा। किसी ट्रांस किसी कैफियत में मैं उसके कदमों की पैरवी करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लड़का मुझे एक महल नुमा कमरे में ले गया। यहाँ पर सफ़ेद और सुनहरी रंग की रोशनियाँ मौजूद थीं। ताहद्दे निगाह सर ही सर थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगा, नमाज तरावी पढ़ी जा रही है। दोनों नौजवानों ने मुझे उस नमाज की सफ़ में शामिल किया और ख़ुद गायब हो गए। मैं उन्हें देखता ही रह गया। अपनी सिलाई मशीन भूल गया था। ज़िंदगी में पहली बार नमाज तरावी में इस कदर खूबसूरत आवाज़ सुनी थी। तभी मैं नमाज में मसरूफ़ हो गया। जमात से फ़ारिग होने के बाद मैंने देखा वहाँ पर मौजूद सभी लोग खामोश और चुपचाप से थे। उनकी ज़ुबानों पर जैसे ताले लगे हुए थे। एक ही बुज़ुर्ग थे जो सबसे बात कर रहे थे, बाकी सब सर झुकाए यूं ही बैठे थे। वही बुज़ुर्ग मेरे पास भी आए। मैंने देखा उनके चेहरे पर शफ़क़त और मोहब्बत थी। इन्होंने मुझे सलाम किया, मुझे कोने की तरफ ले गए जहाँ एक अजीब और ख़ूबसूरत महक आ रही थी। मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे नाम से मुझे मुखातिब किया और कहने लगे, बेटे, दुनिया में इंसान बड़े थोड़े वक्त के लिए आया है। ये वक्त इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होता है। उसे चाहिए कि वो इस बाबरकत महीने में फ़ुर्सत के कुछ लम्हात उस ज़ात के लिए वक्फ़ करे जिस ज़ात की इंसान मोहताज है। तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, अपने कीमती लम्हात दुनिया के चंद सिक्कों के पीछे ज़ाया करने में मसरूफ़ हो। तुम्हें अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं। कल लोगों को कपड़े सिलाई करके देने हैं, तुम्हें उसकी तो फ़िक्र है, लेकिन अल्लाह को अपनी जान देनी है, क्या उसकी कोई फ़िक्र नहीं? इन्होंने मेरे हाथों के ऊपर कुछ कतरे पानी के लगाए जो जिल्द की वजह से बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे। पानी लगने की देर थी कि वो हाथ खुद ब खुद ठीक हो गए, जो अक्सर ज़ख्मों की वजह से खून आलूद रहते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी बातें बताई, नमाज़ पढ़ने की तलकीन की और कहने लगे, मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी जेब में 2 सोने के सिक्के डाले, मुझे सलाम किया और मेरी आंखों के सामने सफ़ेद रोशनी की वजह से जैसे अंधेरा छा गया। ये आखिरी मंजर था जो मैंने देखा। मुझे सख्त हैरत हो रही थी, कहीं मैंने लैलतुल क़द्र तो नहीं देख ली। मेरा दिल सोचने लगा,
यकीनन ये कोई आम वाक़या नहीं था, मैंने अपने दिल में सोचा। फिर जब मेरी नज़र अपनी सिलाई मशीन के पास पड़ी पेटी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वहाँ पर मौजूद वो सभी कपड़े जिन्हें वो लड़का बाहर रख कर गया था, सब के सब सिल चुके थे। कोई भी ऐसा कपड़ा वहाँ मौजूद नहीं था जिसकी सिलाई ना हुई हो। मैं देखा तो हैरान रह गया। हर कपड़ा अपनी अपनी पैमाइश के मुताबिक सिला गया था। तब मैंने रजिस्टर के ऊपर लिखी तफसील से मुआयना किया। मैंने देखा सभी कपड़े नाप के मुताबिक थे। अगला दिन रोज़े का था। मैंने सब लोगों के कपड़े सिलाई कर लिए थे। मगरिब के वक्त अगले दिन की ईद का ऐलान हो गया तो सब लोग मेरी दुकान पर टूट पड़े। मैंने इन्हें बताया कि मैं आप सबके कपड़े सिलाई कर चुका हूँ। इस बात को लेकर सब लोग हैरान थे। उनका ख्याल था कि मैं रात के वक्त सिलाई करूँगा, लेकिन मैं सबके कपड़े सिलाई कर चुका था। इनमें एक बुज़ुर्ग भी थे। जब सब लोग मेरी दुकान से चले गए तो कहने लगे, बेटे तुम्हें इस बात का इल्म तो होगा कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक गैर मामूली वाक़या है। तुम पर अल्लाह का खुसूसी करम है कि उसने अपनी मखलूक के ज़रिए तुम्हारी मदद की, वरना अक्सर लोग इस रात को देखकर अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बुज़ुर्ग की बात ने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था जो मेरे साथ हुआ वो जन्नत का करिश्मा था या फिर लैलतुल क़द्र की बरकत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।